Hello students, welcome to Simrana English classes, and today we will study poem The Ball composed by John Berryman. This poem is about a little boy who experiences grief for the first time when he loses something. This is his ball. He loses his ball. This ball was his favorite beloved possession. So the poem is about the learning, understanding the nature of loss and what it means to lose something. So let us see the poem and its complete explanation and its poetic devices. The ball poem. The boy loses a ball. He is very upset. A ball doesn't cost much, nor is it difficult to buy another ball. Why then is the boy so upset? So what the question here? Why is he sad? A boy loses a ball. एक बॉय है जिसने कि क्या किया है, अपनी बॉल को खो दिया है. He is very upset. That is why he is very upset. You know that when a child loses his toys, they become upset. They become sad. They start crying. So a ball doesn't cost much, nor is it difficult to buy another ball. What poet actually wants to tell us, वो हमें एक बॉल और एक बच्चे के एग्जाम्पल के थ्रू कि किस तरह से बच्चे ने एक बॉल खोई है, उसने क्या खोया है, बताना चाह रहा है कि हमें दुख क्या होता है खोने का, किसी चीज़ को खो देने का, और जब हम किसी चीज़ को खोते हैं तो हम क्या सीखते हैं, यहाँ पे बच्चा क्या सीखता है. तो पोएट कहता है अ बॉल डजेंट कॉस्ट मच. उस बॉल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, इतनी महंगी नहीं है बॉल. आप भी समझ सकते हैं एक बॉल ईजीली आप उसे ख़रीद सकते हैं, और दूसरी बॉल ख़रीदना भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं है. लेकिन कहते हैं ना कि जो चीज़ खो जाती है हम सेम नहीं पा सकते. तो हमें देखना है पोएम में और क्या है. रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट and what the boy has to learn from the experience of losing something. पोएट क्या कहता है कि उसने क्या खोया है खोने के बारे में, और बच्चा क्या एक्सपीरियंस करता है खोने के बाद उस दुख के बारे में, और उस खोने के बारे में उसे क्या चीज़ सीखने को मिलती है. तो हम चलते हैं पोएम को अच्छे से समझ लेते हैं. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. So what does the poet say here? What is the boy now? ये लाइन हमें बताती है that poet is watching the boy playing. बच्चा खेल रहा है और पोएट उसको देख रहा है. तभी क्या होता है, बच्चे की बॉल खो जाती है. What will this boy do? पोएट कह रहा है what he will do now. अब वो क्या करेगा. Who has lost his ball? Who? The boy. The boy who has lost his ball. What will he do now? अब वो क्या करेगा. What is he to do? Let us see what he is to do. अब वो क्या करेगा. I saw it go. Because poet had seen the ball going. Poet had seen that the boy has lost the ball, merrily bouncing down the street. So this is about the ball merrily bouncing. What is bouncing? Jumping. क्या चीज़ जंप कर रही है, क्या चीज़ उछलती कूदती हुई जा रही है. merrily bouncing down the street. वो बॉल, या हमने देखा पहली दो लाइन में कि एक बच्चा है जो कि अपनी बॉल से खेल रहा है, और पोएट ने उसको देखा है खेलते हुए, और उसने ये भी देखा है कि उसकी बॉल उससे खो जाती है, दूर चली जाती है. तो वो कहाँ चली जाती है. मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरिली ओवर. वो कूदती हुई खुशी से, मैरिली. इट गोज़ डाउन इन द स्ट्रीट एंड देन मैरिली ओवर. देयर इट इज़ इन द वाटर. और फिर वो वहाँ पानी में चली जाती है. नो यूज़ टू से ओह there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy. And what poet again says here? He tells us that he doesn't want to
teach something to the boy himself, or doesn't want to say something or check him that, oh, there are other balls. He doesn't want to console him. You know, the boy is unhappy, upset here. उसकी बॉल खो गई और वो यहाँ दुखी है. पोएट क्या कहता है? नो यूज टू से ओ देर आर अदर बॉल्स. पोएट कहता है आई विल नॉट से टू हिम दैट देर आर अदर बॉल्स. से मतलब यहाँ पे कंसोल करना, कि मैं उसे कंसोल नहीं करूँगा, मैं उसे दिलासा नहीं दूंगा कि अरे तुम परेशान मत हो, तुम्हारी बॉल खो गई है, यहाँ बहुत सारी बॉल्स हैं, ले सकते हैं दूसरी बॉल्स. वो ऐसा नहीं कहता है. एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय. वो कब सोच रहा है कि मैं उससे ऐसा नहीं कहूँगा? जब वो देखता है कि बच्चा जो जिसकी बॉल खोई है, द बॉय हु हैज़ लॉस्ट द बॉल इज़ इन ग्रीफ. ही इज़ ग्रीफ स्ट्राइकन, ही इज़ फीलिंग पेन. उसे बुरा लग रहा है. एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय. अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, फाइनली वो एक बहुत दुख में है और वो दुख आके उसको पूरी तरीके से शेक कर लेता है, घेर लेता है, उसे हिला देता है. फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड, trembling, staring down all his young days into the harbor where. The boy is very unhappy, he is in grief, he is feeling pain, and he is standing rigid, he is standing firm, he is doing nothing, he is not moving even. Trembling, staring, वो कब कब आ रहा है और वो वहीं खड़ा हुआ है rigidly, staring down, और वो देख रहा है what he is staring down, his ball, जो कि बाउंस करती हुई चली गई पानी में और वो उसको नहीं मिली, नहीं उसको रोक पाया. एंड ही लॉस्ट इट, और उसने उसको खो दिया. एंड व्हेन ही इज स्टेयरिंग डाउन द बॉल, व्हेन ही इज लुकिंग डाउन द बॉल, जब वो नीचे देख रहा है बॉल को जाते हुए, तो वो क्या देख रहा है? ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट. वहाँ हार्बर में, पानी में, जहाँ उसकी बॉल चली गई है, ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर, उसके वो यंग डेज मतलब ही इज़ अ बॉय व्हेन ही वॉज यंगर, और छोटा था व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड, हिज चाइल्डहुड डेज, ऑल हिज यंग डेज, हिज चाइल्डहुड डेज, और वी कैन से द मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड. ही इज लुकिंग ऑल हिज यंग डेज, memories related to his childhood, as the ball was moving or it was bouncing, jumping to the harbor. जैसे कि वो फुदकती और कूदती हुई बॉल उस हार्बर के पानी में चली गई है, उसी तरह से वो देख रहा है कि उसका जो मेमोरीज़ हैं वो भी उस मेमोरीज़ रिलेटेड टू द बॉल, दैट द बॉल वॉज फेवरेट टू हिम, ही यूज टू प्ले विद द बॉल, ही वॉज हिज फेवरेट टॉय. तो वो उसको जाते हुए देख रहा है. हिज बॉल वेंट, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम. हिज बॉल वेंट, उसकी बॉल चली गई. हु इज़ द स्पीकर हियर? पोइट. पोइट कह रहा है हिज बॉल वेंट, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, एंड आई वुड नॉट इंटरफेयर इन दिस. मीन्स आई वुड नॉट बी अ इंट्रूडर टू चेक हिम, कि मैं उसे बताऊँगा कि भाई उसकी बॉल चली गई है और क्या करना चाहिए, क्योंकि उसको लगता है कि शायद आई वुड बी एन आउटसाइडर इफ़ आई विल डू दिस, एंड ही इज़ गोइंग टू लर्न लॉट विद हिज एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग व्हेन ही हैज़ लॉस्ट हिज बॉल. तो वो चाहता है कि वो उसे चेक नहीं करेगा, उससे कुछ भी नहीं कहेगा, क्योंकि ऐसा करना से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो चाहता है कि वो खुद कुछ सीखे, उस खो देने के एक्सपीरियंस से सीखे. अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस. अ मीनिंग ऑफ दिस डाइम हियर करेंसी है 10 cents ऑफ US. सो अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस. सो डाइम हियर 10 cents. जैसे हमारे देश में रुपी होता है, पैसा होता है, रुपया होता है, ऐसे है. सो पोएट सेज दैट he was not going to help him with any money, or he is not going to offer him money to buy a new ball, because this was worthless, क्योंकि वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसका वो बेकार है. Now
he senses his first responsibility, because sensing himself, and he would realize, he would come to understand the responsibilities. वो अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगा. रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, जो हमें जिम्मेदारियाँ मिलती हैं. ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो एक बच्चा है और अभी उसको पता चलेगा कि उसे चीज़ों को कैसे रखना था, खोना क्या होता है, खोने का दुख क्या होता है, तो उसे वो जिम्मेदारी का एहसास होगा. ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ possessions. In a world of possession, what is the meaning of this? In a world of possession, that this world is materialistic. As in this world, people want to possess more and more things. They want to own things. So हमें अच्छा लगता है कि हम नई चीज़ें खरीदें और हमारे पास हों. But actually what poet wants to teach to the boy, that which we will get in the end of the poem, memories are precious, which is of this world, which can be bought with the money, that is materialistic things. जो चीज़ें हमारे पास होती है और हम उनके पीछे बहुत भागने लगते हैं, जैसे रुपया, पैसा, घर, मकान. Like with these possessions, one maintains her status in the world. He is known for that things which he owns. People run after the materialistic things. So the world is called here the world of possession. In a world of possession, और इस materialistic world में हमें कैसे डील करना है, हमें कैसे चीज़ों को ध्यान से रखना है, कैसे अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है, ये उस बच्चे को सिखाना चाहता है. People take balls will be lost always, and he want to convey the message with this example, that people will take balls in the world of possession. In this materialistic world, people will keep on buying balls. Means लोग अपनी चीज़ें जो उन्हें अच्छी लगती हैं वो पैसे से ख़रीदते रहेंगे, and balls will be lost always. और इस तरह से जो पैसे से ख़रीदी हुई चीज़ें हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दुनिया में जो हमें फेवरेट होती हैं, जो हमें बहुत प्रिय होती हैं, वो खोती जाती रहेंगी. इस तरह से ये दुनिया चलती रहेगी. Here poet says that in the world of possession, the boy, like his ball, he will lose things as he has lost his ball, but he will buy some more things to replace the once lost things, and he would never be able to buy back the things that he had lost. So this is the world of possession. इस तरह से ये वर्ल्ड चलता है, दुनिया चलती है, जिसमें हम चीज़ों को खोते हैं. Little boy, and no one buys a ball back, but the thing which we have lost, जो चीज़ हमने खो दी है, we don't get it again, the same thing. We can't buy the same thing back. हम वो चीज़ वापस हमें नहीं मिलती है. Money is external. He is learning. Well behind his desperate eyes, यहाँ पे पोइट क्या बताना चाह रहा है कि and no one buys a ball back. इस तरह से जो जीवन में चीज़ें होती हैं वो पैसा खर्च करके या पैसे से हमें वापस नहीं मिलती हैं. मनी इज़ एक्सटर्नल. वो हमें जो हम बहुत सारी खुशियाँ हैं ऐसी, वो हम पैसे से नहीं खरीद सकते. तो वो यहाँ बताना चाह रहा है कि आप वो खोई हुई चीज़ें नहीं खरीदी जा सकती. सो मनी इज़ एक्सटर्नल. मनी कैन नॉट बाय मेमोरीज. मनी कांट ब्रिंग बैक द थिंग्स दैट वी लव और द थिंग्स दैट वी हैव lost. So the boy has to learn to take care of his things. He has to learn to cope up. Not only this, he has to learn to cope up with the loss. इसलिए हमें एक ड्यूटी होनी चाहिए कि जब तक हमारे पास टाइम है, समय है, जब लाइफ है, तो हम मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे ना भागकर एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग हमें बनानी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन चीज़ों की कद्र करनी चाहिए, उन्हें संभाल कर रखना चाहिए. क्योंकि एज वी ऑल नो दैट लॉस इज़ एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ. लॉस
can't be avoided as death is certain, है ना, death cannot be avoided. In the same way, so loss, खोना, death भी एक तरह का loss है जिसमें हम अपनों को खो देते हैं. तो ये जो loss है वो उसे हम टाल नहीं सकते. You know, this is the harshest reality of life, that we lose our dear ones, our loving things. तो हम उनके पीछे, ऐसा नहीं है कि हम अपनी पूरी लाइफ उसमें लगा दें और हम कुछ ना करें. वी हैव टू कोप अप विद दैट लॉस. हमें उससे अपने आप को हटाना पड़ता है, हमें अपने आप को उससे अलग करना पड़ता है, यानी रिकवर करना पड़ता है उस लॉस से. वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, नोइंग. नाउ व्हाट इज ही लर्निंग? वो क्या सीख रहा है ऐसा करने से? क्या था लास्ट सीन? दैट ही वॉज प्लेइंग विद हिज बॉल एंड देन ही लॉस्ट हिज बॉल, एंड पोएट वॉज देयर बट ही doesn't want to teach him anything, because with this experience he is learning himself. वो खुद अपने आप सीखेगा कि खो देने का लॉस क्या है और उसे क्या करना चाहिए था. तो यहाँ पर he is learning, वो यहाँ सीख रहा है यही चीज़, that we cannot buy many things back with the money, as money is external. Well behind his desperate eyes, और वो अपनी desperate eyes से, here he is very disappointed, he is hopeless, उसे कोई उम्मीद नहीं है. उसकी eyes कैसी हैं? Hopeless eyes, desperate eyes. The epistemology of loss. Epistemology, the Greek word epistem means knowledge. ये epistem word से बना है जिसका मतलब है knowledge. It comes from a word meaning to understand, to know, और जिसका word meaning है to understand, जानना, to know. Epistemology is the study of the nature of knowledge itself. Nature of knowledge, ज्ञान जो हमें प्राप्त होता है, जो हम knowledge gain करते हैं, तो वो knowledge हम कई बार खुद experience करके, खुद कुछ खोकर, हमें उस खोने की nature जो है उसका हमें पता चलता है. तो that is epistemology of loss, how to stand up. यही एक nature होती है लॉस की. What is the nature of loss? कि he makes you desperate. Loss makes you desperate. Loss put you in grief. जो loss होता है that puts you in grief, उससे हमें we become grief stricken. हम दुखी हो जाते हैं. We are in pain. We can't bear that loss, that पेन ऑफ सेपरेशन. अगर ऐसा हमारी लाइफ में होता है और हम अपने से अलग हो जाते हैं तो हम उन्हें उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं. तो एक लॉस का नेचर होता है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. हाउ टू स्टैंड अप, कि हमें कैसे उसको बियर करके हमें कैसे खड़े होना है. हाउ टू कोप अप विद दिस लॉस, हाउ टू री एस्टेब्लिश आवर सेल्फ. हमें फिर से कैसे खड़ा होना है, अपनी एक जगह कैसे बनानी है. नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, ये जानकर, ये नॉलेज लेकर, वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, जो हर इंसान किसी ना किसी दिन जानता है. मीन्स एवरीबडी हैज़ टू फेस दिस लॉस, एवरी वन हैज़ टू बियर दिस पेन ऑफ लॉस, पेन ऑफ सेपरेशन. ये चीज़ हर किसी को बर्दाश्त करनी पड़ती है, हर किसी को इसका सामना करना पड़ता है. एंड देन वी लर्न हाउ टू कोप अप विद दिस लॉस, और तभी हम सीखते हैं कि हमें उससे कैसे उबरना है. एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप. सो पोएट हियर वांट्स टू टेल अस दैट दिस इज द नेचर ऑफ लॉस एंड एवरीबडी हैज टू stand up after such losses. And in the same manner boy will also learn how to stand up. वो भी सीखेगा कि उसे कैसे ये सब भूल जाना है और उस दुख से निकल जाना है. And leave the losses behind and he would have understand the true meaning and nature of loss. इस तरीके से वो loss, he will not be that grief stricken, है ना, जो कि दुख मनाता रहे और रोता रहे. वो ऐसा नहीं होगा और उस दुख से वो निकल जाएगा. एंड ही विल ऑल्सो लर्न टू
pay his responsibilities, to take care of his toys, his things, his relations, his family. बहुत सारी चीज़ें होती हैं बच्चों के लिए जो वो सीखते हैं इस तरह से. तो एक छोटे से उदाहरण से कि बच्चा अपनी बॉल को खो देता है, पोएट एक बहुत बड़ी लाइफ की टीचिंग यहाँ पर दे रहा है. आई होप यू लाइक दिस पोएम. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ पोएटिक डिवाइसेस जो इस पोएम में है यहाँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल look at the third line of first stanza here. Merrily bouncing down the street and then merrily over. Merrily bouncing. Merrily means happily. Merrily means है happily. तो यहाँ पे क्या चीज़ खुशी से बाउंस कर रही है? बॉल. सो यू नो बॉल इज़ अ नॉन लिविंग थिंग. वो कैसे खुश हो सकती है और वो कैसे खुशी से बाउंस कर सकती है? बॉल का बाउंस होना एक अलग चीज़ है, लेकिन वो खुशी से नहीं हो सकती. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पर्सनिफिकेशन है. द बॉल हैज़ बीन पर्सनिफाइड हियर, मैरीली बाउंसिंग. तो यहाँ पे हम इसको अंडरलाइन करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे पर्सनिफिकेशन है. उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अलिट्रेशन. पोएटिक डिवाइस है अलिट्रेशन, जहाँ पर आप इस लाइन में आप देखेंगे balls will be lost always, little boy. So B, and no one buys. Again B, a ball back. B. So here is the repetition of ba sound. Balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back. So here is alliteration, repetition of sound, जहाँ पे sound का किसी लेटर से जो साउंड हम क्रिएट करते हैं उसका रिपीटिशन होता है, बार बार आती है, तो वहाँ पर हम उसको अलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस होता है, उसे अलिट्रेशन कहते हैं. और यहाँ पर रिपीटिशन भी है जहाँ पे वर्ड्स को हम रिपीट कर रहे हैं बार बार. फर्स्ट लाइन में है, फर्स्ट लाइन में पहुँचेंगे हम इसकी. व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल? वॉट यू नो वॉट. तो ये वॉट रिपीटिशन है यहाँ पोएटिक डिवाइस. इसी तरह से आप और लाइंस में भी देख सकते हैं. तो ये कुछ पोएटिक डिवाइस हैं, पर्सनिफिकेशन, अलिट्रेशन, रिपीटिशन, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं लाइंस में, या उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जिनको आपको बताना होता है. और भी कुछ हैं यहाँ पर पोएटिक डिवाइसेस, लेकिन मेनली यही कुछ हैं जो पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में. तो आप इनको ध्यान से देखिए, पोएम की स्टडी करिए, इसको समझिए और अपने एग्ज़ाम के लिए उसको प्रिपेयर करिए.